Hi guys, very good morning dear students. This is lecture number 6 of shear force diagram and bending moment diagram. In this current lecture, we are going to draw shear force diagram and bending moment diagram of cantilever beam having multiple loads and multiple spans. Dear students, in last lecture, we have covered the questions regarding cantilever beam having point load and UDL, that means uniformly distributed load over the beam, and we have already covered the basic concepts of shear force diagram and bending moment diagram in last 4 lectures. So before watching this lecture, you must watch last 5 lectures so that you understand the concept and how to draw the shear force diagram and bending moment diagram of cantilever beam having multiple loads. ये लेक्चर नंबर 6 है जो कि SFD एंड PMD का है, जिसमें हम लोग कैंटिलीवर बीम पे मल्टीपल लोड्स आ रहे होते हैं, तो उस केसेस में हम लोग शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं उसको हम इस लेक्चर में देखेंगे। लेकिन इस लेक्चर को देखने से पहले आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के जो भी वीडियोस पहले अपलोड किए गए हैं उसको आपको जाकर देखना पड़ेगा, तब जाकर कि ये आपको वीडियो, ये जो लेक्चर्स है आपको समझ में आएगा। इसलिए इससे पहले जो भी वीडियोस, जो भी लेक्चर्स थे, जो भी PDF नोट्स अपलोड किए गए हैं गूगल क्लासरूम में, वहाँ से जाकर के आप एक्सेस करें और उसको अच्छे से पढ़ें, ठीक है, क्योंकि सारे चैप्टर्स एक दूसरे से इंटरलिंक है, तभी जाकर के आपको आगे की चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हैं तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आपको आए, है ना। इसलिए पहले आप जाकर प्रीवियस लेक्चर्स को देखें, लेक्चर नंबर 1 to 5, देन यू कैन अंडरस्टैंड दिस करेंट लेक्चर। ओके, तो चलिए हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, है ना। बट बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर आई वांट टू शेयर some important points while drawing SFD or BMD of beam having multiple forces. This is the some important points while drawing shear force diagram and bending moment diagram of any type of beam having multiple loads. Okay, so first important point, take a section at x distance from some specific point in every region in a beam. Means you have to take a section at x distance from some specific point in every region in a beam. Suppose this is a beam and having number one forces having W1, that is another forces that is W2, that is another forces W3, and having a span that is 2 meter, and that is 3 meter, and that is also 2 meter, and total span 5 meter. Means you have to take section. Suppose it is a point A, it is a point B, it is a point C, it is a point D. In that cases you have to take section in every regions, isn't it? You have to take section in every region. That means DC region one section, X in CB region, that is another sections, and BA region, that is another sections. You have to take section in every regions. Means every regions means DC, CB and BA. जब भी आपको किसी भी कैंटिलीवर बीम पे या किसी भी टाइप के बीम पे मल्टीपल लोड्स आ रहे हो, या पॉइंट लोड हो सकते हैं या वो UDL हो सकते हैं, उस केसेस में जब आपको SFD और BMD ड्रॉ करना हो तो आपको वहाँ पे एक सेक्शन लेना पड़ेगा जो कि हर एक रीजन में लेना पड़ेगा, ठीक है। हर एक रीजन में जितने रीजन्स हैं उस सारे रीजन में एक एक सेक्शन लेना पड़ेगा जो कि किसी स्पेसिफिक पॉइंट से होगा। और इन केस ऑफ कैंटिलीवर बीम हम लोग हमेशा फ्री एंड से सेक्शन लेते हैं। मान लीजिए ये फ्री एंड है तो पहला सेक्शन लिए CD रीजन में यहाँ से x डिस्टेंस पे, नेक्स्ट सेक्शन लेंगे हम लोग CB रीजन में, फिर लेंगे x डिस्टेंस पे, और उसके बाद फिर लेंगे B रीजन में, फिर लेंगे यहाँ पे x डिस्टेंस पे, ठीक है। सो अंडरस्टैंड दीज पॉइंट्स बिकॉज while drawing SFD and BMD of beam having multiple loads, this concept will be utilized. Okay,
एंड इन कैंटिलीवर बीम वी टेक द सेक्शन, वी टेक द डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम फ्री एंड। ओके, हम लोग कैंटिलीवर के बीम के केस में फ्री एंड से हमेशा एक्स डिस्टेंस का मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब मल्टीपल लोड्स के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? ठीक है, इन केस ऑफ कैंटिलीवर बीम सेक्शन इज टेकन फ्रॉम फ्रिंड। आई होप मैंने पहले भी समझा दिया है। नेक्स्ट, डिफाइंड रीजन, डिफाइंड रीजन ऑफ पर्टिकुलर सेक्शंस। मैं बताऊंगा रीजन क्या होता है ना, मतलब कि जो x का वैल्यू है कहाँ से कहाँ तक लाइज कर रहा है उसको हम लोग देखेंगे। जैसे कि एक बीम है इस टाइप से, इसमें दो लोड आ रहा है, एक W1 है, एक W2 है ना, एक W2 है। ठीक है, और यहाँ से हमने एक सेक्शन लिया, मान लीजिए ये A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, और मान लीजिए कि हम लोगों ने यहाँ पे एक सेक्शन लिया XX जो कि कितना पे डिस्टेंस पे, और मान लीजिए इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ 2 मीटर है और इसका डिस्टेंस भी यहाँ से यहाँ 2 मीटर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपने एक सेक्शन लिया यहाँ से यहाँ तक x, तो देखिए ये x जो सेक्शन है आपने CB रीजन में लिया है, इजंट इट? x सेक्शन कहाँ लिया है आपने? इस CB रीजन में x सेक्शन आपने लिया है इस CB रीजन में, क्योंकि हमारा x डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन वो x कहाँ से कहाँ वैरी कर रहा है? C से B तक ऑनली। मीन्स यहाँ से जब आपने फ्रेंड से लिया है इस डिस्टेंस को, मतलब यहाँ पे 0 है और यहाँ से यहाँ कितना है? 2 है, यानी x का वैल्यू यहाँ पे 2 देख रहे हैं आप, तो 2 पे एक और लोड आ रहा है, इस पॉइंट पे एक और लोड आ रहा है, तो x जो है लेस देन 2 के लिए वैरी करेगा। x का वैल्यू 2 से कम होगा तब ये, क्योंकि यहाँ से यहाँ 2 मीटर है, x का वैल्यू 2 मीटर से कम होगा या ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, मतलब 0 पे लाइज करेगा तब फोर्स, या 0 से बड़ा होगा लेकिन इस वैल्यू से 2 से छोटा होना चाहिए। अगर यहाँ कोई लोड नहीं आ रहा होता तो 2 के बराबर भी हो सकता था, लेकिन यहाँ एक लोड और W1 आ रहा है, इसके लिए यह 2 से क्या होगा? छोटा होगा। तो ये जो पहला रीजन आपका है, ये जो BC है, इस CB है, इसमें रीजन क्या होगा? x लेस देन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझना, तभी जाकर आप आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ राइज करेगा? इस 2, देखिए यहाँ पे लोड आ रहा है तो ये 2 के बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सडनली आएगा तो जो फोर्सेस का वैल्यू है, शेयर फोर्स का वैल्यू चेंज हो जाएगा, क्योंकि W लोड अनदर यहाँ पे आ रहा है। अगर यहाँ पे कोई लोड नहीं आ रहा होता तो 2 के बराबर हो सकता था, लेकिन हमेशा यहाँ 2 से छोटा हो, क्योंकि लोड यहाँ पे B पे काम कर रहा है। ठीक है, तो ये जो आपका ये जो है यहाँ पे ये जो रीजंस है, x लेस देन 2 होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन 2 से क्या होगा? छोटा होगा। उसी तरीके से अगर आप इस रीजन में सेक्शन लेते हैं, मान लीजिए इस रीजन में आपने सेक्शन लिया, तो यहाँ से फिर से x डिस्टेंस लिया आपने, लेकिन यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा? यहाँ से x का वैल्यू होगा x जो होगा लेस देन, अब यहाँ से आपको फ्रेंड से डिस्टेंस देखना है, तो फ्रेंड से टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितना है? 4 है, तो यहाँ x लेस देन इक्वल टू 4, देखिए अब यहाँ पे कोई लोड नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे लेस देन होगा और इक्वल टू भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ कोई लोड नहीं आ रहा है। बात समझना है, यहाँ पे x लेस देन और इक्वल टू 4 और ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या? 2 के बराबर भी हो सकता है और 2 से क्या होगा? छोटा भी हो सकता है। ये लिखा हुआ है ना, x लेस देन इक्वल टू 4 और सॉरी x लेस देन इक्वल टू 4 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब 2 से बराबर हो सकता है, 2 से बड़ा हो सकता है। तो ये रीजन सेकेंड किसके लिए? BA के लिए ये रीजन होगा। तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब हम SFD और BMD ड्रॉ करेंगे किसी भी बीम के लिए, ये किसी भी बीम के लिए एप्लीकेबल है, ये किसी भी बीम के लिए आप इस कॉन्सेप्ट को लगा सकते हैं। अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ जा रहे हैं तो मैं ये डैम श्योर कह सकता हूँ कि आप किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को, किसी भी टाइप के बीम के, मतलब डिटर्मिनेट बीम के, है ना, किसी भी टाइप के बीम के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा। बहुत सारे बुक में बहुत सारे तरीके से बनाया हुआ रहता है, लेकिन मैं जो आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ये डेफिनेटली बहुत सारे ऑब्जर्वेशन के बाद में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बहुत सारे बुक्स पढ़े हैं, तब जाकर मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। अगर ये चीज़ आप समझ जा रहे हैं तो आप किसी भी टाइप के बीम के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आपको रटना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप फिर से बुक पढ़ेंगे रीति पब्लिकेशन का या बहुत सारी बुक्स जिसमें डायरेक्ट वैल्यू निकाला हुआ होता है, तो आपको फिर रटना पड़ जाएगा वहाँ पे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप कॉन्सेप्ट को समझिए, आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। पहले क्या करना है आपको, जो भी बीम है उसमें जितने भी रीजन्स है, सारे रीजन्स में सारे रीजन में सेक्शन लेना है, ठीक है। सारे रीजन में मान लीजिए 3 रीजन है तो तीनों रीजन में सेक्शन लेंगे, और तीनों रीजन में जो डिस्टेंस लेंगे हमेशा फ्री एंड से लेंगे कैंटिलीवर बीम के केस में, और आगे सिंपली सपोर्टेड आएगा और ओवर हैंगिंग आएगा तो मैं बता दूंगा कैसे होगा। लेकिन अभी फिलहाल समझिए कि जब भी आपका कैंटिलीवर बीम होगा उसमें जो हम सेक्शन लेंगे हमेशा फ्री एंड से लेंगे और हर एक रीजन में लेंगे,
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा कि उसमें हम लोग क्या करेंगे कि रीजन्स डिफाइन करेंगे कि जो x का वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ लाइज कर रहा है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ताकि हम x के वैल्यूज को पुट करें और वहाँ पे SFD और BMD को शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को ड्रॉ कर पाए, क्योंकि हमारा x का टर्म में वैल्यू आएगा। अब बोला जाएगा कि c पे निकाले तो c में x का वैल्यू 0 हो जाएगा, बोला जाएगा कि यहाँ पे b पे निकाले तो b पे क्या हो जाएगा, x का वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगा। उस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस में शेयर फोर्स को और बेंडिंग मोमेंट को ड्रॉ कर सकते हैं। सो आपको इस पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी था, तभी जा करके आप आगे के कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। आई होप कि आपको ये 2-3 पॉइंट जो मैंने बताया अभी, ये आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी के रूप में काम करेगा, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से थोड़ा इस पॉइंट को पढ़ना और इस पॉइंट को लिखना अपने नोट्स में, ठीक है, आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और अब देखना कि किसी भी टाइप का क्वेश्चन कितने इजी वे में सॉल्व होता है, किसी भी टाइप का ट्विस्ट प्रॉब्लम से ट्विस्ट प्रॉब्लम। इससे पहले हम लोगों ने सिर्फ सिंपल केस देखा था कि कोई बीम है उस पर UDL आ रहा है, सिंगल लोड था, कोई बीम है उस पर पॉइंट लोड आ रहा है, लेकिन अभी यहाँ पे मल्टीपल लोड्स आएंगे, तब कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दिया हूँ और देखना क्वेश्चन कैसे इजी वे में सॉल्व होगा। बस जो क्वेश्चन में कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम अपना काम करते चलेंगे। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे आज का है, ए कैंटिलीवर बीम ऑफ स्पैन 4 मीटर। पहले देखिए, कैंटिलीवर बीम है जिसका स्पैन मतलब इंड से लेकर के लास्ट तक का जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर है, कैरीज 3 पॉइंट लोड। ध्यान से 3 पॉइंट लोड मतलब 3 पॉइंट लोड आ रहा है, जिसका इंटेंसिटी की जिसका लोड कितना है, 2 किलो न्यूटन है, 3 किलो न्यूटन है एंड 4 किलो न्यूटन एट, यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 मीटर, 3 मीटर एंड 4 मीटर फ्रॉम फिक्स इंड। देख रहे हैं ना, 2 किलो न्यूटन, 3 किलो न्यूटन, 4 किलो न्यूटन, जो कि 1 मीटर पे, 3 मीटर पे एंड 4 मीटर फ्रॉम फिक्स इन पे काम कर रहा है। तो ड्रॉ शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे, है ना। सबसे पहले जो बीम का लोडिंग कंडीशन है उसको ड्रॉ करेंगे, जो हमारा ये लोडिंग कंडीशन है कि लोड आखिर कैसे आ रहा है बीम पे, है ना, इसको ड्रॉ कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे ये कैंटिलीवर बीम यही है। अब कैंटिलीवर बीम है आपका, यहाँ से मतलब यहाँ पे 2 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है, जो कितना डिस्टेंस पे आ रहा है, 1 मीटर पे आ रहा है। तो यहाँ से 1 मीटर पर डिस्टेंस ले लिए। फिर 3 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है, ये कितना डिस्टेंस पे है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 3 मीटर पे है। ठीक है, फिर 4 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है, जो कि यहाँ से फिक्स इंड से कितना है, 4 मीटर पे है। ठीक है, बाकी का और डिस्टेंस खुद से करेंगे, क्योंकि इतना डिस्टेंस हमको पता हो गया। अब आपको इस दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछे तो नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक कितना है, 3 है, तो यहाँ से यहाँ 1 है, तो कितना हो जाएगा, बीच में 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे यहाँ से यहाँ 3 है और यहाँ टोटल डिस्टेंस 4 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर हो जाएगा। ये सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है, आपको 3 डिस्टेंस दिया हुआ है, आपका अंडर का जो डिस्टेंस है जो रिक्वायर्ड है आपको वो निकालना पड़ेगा। तो हमने सारे लोडिंग कंडीशन को यहाँ पे डिपिक्ट कर दिया, लोडिंग कंडीशन को बीम पे दिखा दिया, क्योंकि सबसे पहला काम यही होता है कि जब भी आपका जो भी क्वेश्चन लैंग्वेज के फॉर्म में है उसको आप बीम पे उस लोडिंग कंडीशन में क्या कीजिए, उसको शो ऑन कीजिए। ठीक है, तभी जाके आप क्वेश्चन बना सकते हैं आगे। तो आई होप कि आप लोडिंग कंडीशन बीम पे कैसे दिखा सकते हैं ये मैंने आपको बता दिया है, और आप आई होप कि अच्छे से दिखा सकते हैं किसी भी टाइप का लोडिंग कंडीशन को। मैंने जैसा भी बताया उसी तरीके से किसी भी टाइप के क्वेश्चन को, अगर UDL है तो UDL दिखाइए, पॉइंट लोड है तो पॉइंट लोड दिखाइए, है ना, दोनों दिखा सकते हैं आप जैसे दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, मैंने इसको ड्रॉ कर लिया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग शेयर फोर्स कैलकुलेशन और बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन करेंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम जब कैलकुलेशन ऑफ शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट करते हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन इन योर copies sign convention of both shear force and bending moment, because it is very convenient for examiners to check and it's very important for you। अगर आप SFD और BMD जब ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट का जब कैलकुलेशन करते हैं तो वहाँ पे आप साइन कन्वेंशन को जरूर लिखिए, क्योंकि ये एग्जामिनर को बहुत हेल्प करता है कि आप साइन कन्वेंशन क्या एज्यूम करके आप थ्रू आउट द क्वेश्चन को सॉल्व किए हो। इससे एग्जामिनर को बहुत ही सहूलियत होता है कॉपीज़ को चेक करने में। सो आप यहाँ पे ये चीज़ नोटिफाई करेंगे तो एग्जामिनर को लगेगा नहीं ये सब सारे कॉन्सेप्ट बच्चे को पता है, आपको आसानी से वहाँ पे मार्क्स मिलेंगे, है ना। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मान लीजिए एक सेक्शन लिया हुआ है, सेक्शन के राइट साइड में डाउनवर्ड फोर्स है, लेफ्ट साइड में अपवर्ड है, इस केसेस में हम लोग शेयर फोर्स को पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, अगर सेक्शन के राइट साइड में अपवर्ड है और लेफ्ट साइड में डाउनवर्ड है, इस केसेस में निगेटिव शेयर फोर्स लेते हैं। और अगर हम बेंडिंग मोमेंट की बात करें तो बेंडिंग मोमेंट के केसेस में हम जो है यहाँ पे अगर सेक्शन के राइट साइड में एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, सेक्शन के लेफ्ट साइड में क्लॉकवाइज मूवमेंट, इस केसेस में हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। अगर सेक्शन के राइट साइड में क्लॉकवाइज मूवमेंट, लेफ्ट साइड में राइट साइड में क्लॉकवाइज, लेफ्ट साइड में एंटी क्लॉकवाइज, इस केसेस में हम लोग निगेटिव बेंडिंग मूवमेंट लेते हैं। सो प्लीज मेंशन इन योर
examination copies or where you practice the questions. You must mention this sign convention because it is very important to know you, कि आपको पता चलेगा कि आप क्या साइन कन्वेंशन लेकर के थ्रू आउट द क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप कि साइन कन्वेंशन का कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा। आई होप कि इससे पहले जो क्वेश्चन मैंने बनवाया था उसमें साइन कन्वेंशन को यूटिलाइज किया गया, और पहले मैंने जब क्वेश्चन थियोरेटिकल पार्ट पढ़ा रहा था तो वहाँ भी मैंने साइन कन्वेंशन के बारे में बहुत बार डिस्कस करा था। तो साइन कन्वेंशन मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगा। चलिए, अब जो हमारा बीम सेक्शन था, उस बीम सेक्शन में सबसे पहले हमें एक सेक्शन लेना होता है, ठीक है। मैंने जैसे कि फर्स्ट पॉइंट बताया था। अब देखिए यहाँ पे ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अब देखिए यहाँ पे डी सी और सी बी और बी ए, यहाँ पे तीन रीजन्स हैं। तो आप ध्यान दीजिए, जो पहला सेक्शन लेंगे रीजन डी सी में लेंगे। पहला रीजन कौन होगा? डी सी, डी से लेकर के सी तक का, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये रीजन है। इसमें हमने एक सेक्शन लिया जो कि एक्स एक्स है, ठीक है। ध्यान से यहाँ पे है ना, मैंने बताया था कि कैंटिलीवर बीम के केस में हमेशा जो सेक्शन लेंगे हम कहाँ से लेंगे? फ्री इंड से लेंगे, फ्री इंड से लेंगे। रिमेंबर इट, हमेशा हम सेक्शन जो लेंगे, हर एक सेक्शन को हम किसी स्पेसिफिक पॉइंट से लेंगे। मतलब हमेशा हर एक डिस्टेंस, हर एक रीजन में हम कैंटिलीवर बीम के केसेस में यहाँ पे फ्री इंड से ही लेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे एक्स डिस्टेंस में क्या लिया? एक सेक्शन लिया। अब बताइए आप इस सेक्शन में, ये जो एक्स एक्स सेक्शन है, अब यहाँ पे शेयर फोर्स का जब कैलकुलेशन करेंगे तो मैंने बताया था कि सेक्शन के अगर राइट साइड में, ये राइट साइड पोर्शन है ना, यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स आ रहा है, तो डाउनवर्ड फोर्स के केसेस में हम लोग शेयर फोर्स को पॉजिटिव लेते हैं। तो पॉजिटिव लिख दिया हम लोगों ने यहाँ पे 4 किलो न्यूटन। तो शेयर फोर्स क्या निकल गया? एक्स एक्स रीजन में निकल गया, ठीक है। अब देखिए बेंडिंग मोमेंट है एक्स एक्स, आप लोग बहुत समझदार है। बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए फोर्स को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपका ये जो सेक्शन एक्स एक्स है, यहाँ पे आप लोगों ने बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन किया। तो ये जो बेंडिंग मोमेंट है, बेंडिंग मोमेंट कितना होगा? 4 इंटू क्या? एक्स। अब देखिए ये कैसे रोटेट करेगा? ऐसे क्लॉकवाइज, दिख रहा है ना। बीम को मान लीजिए इसके अबाउट, सेक्शन के अबाउट रोटेट करें तो कैसे रोटेट करेगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो 4 इंटू एक्स हो गया ये मोमेंट का मैग्नीट्यूड। और साइन क्या होगा? मान लीजिए सेक्शन है, सेक्शन के राइट साइड है यहाँ पे, और राइट साइड में क्लॉकवाइज मूवमेंट है, क्या लेते हैं साइन कन्वेंशन? निगेटिव। तो -4 इंटू एक्स। आई होप कि यहाँ तक आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर हो गया होगा और आपको बहुत कुछ जो है जानने को मिला होगा अभी तक, ठीक है। तो चलिए आगे। तो ये हमारा सेक्शन में निकल गया, ठीक है। अब इस सेक्शन पे हमारी सारी चीज़ें निकल गई। अब सेक्शन कहाँ से कहाँ वैरी करेगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफाइन द रीजन ऑफ द सेक्शन, ठीक है। मैं आपको बहुत ही कॉन्सेप्ट अच्छा बता रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल है, और आप एग्जामिनेशन में विदाउट किसी भी चीज़ को याद किए हुए, किसी भी चीज़ को रटे हुए, आप इस कॉन्सेप्ट को लगा करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। चलिए, तो आपका जो ये जो पार्ट था इसमें हमने बताया, और ये जो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स एक्स एक्स और बेंडिंग मोमेंट एट एक्स एक्स निकला। अब देखिए वेयर एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ लाइज कर रहा है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ लाइज कर रहा है। आप देखिए यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए एक्स का वैल्यू यहाँ, ये आप समझ गए हैं तो आप सभी क्वेश्चन में रीजन को डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से फ्रेंड से, तो फ्रेंड पे वैल्यू एक्स का क्या है? 0 है, क्योंकि हमने डिस्टेंस यहाँ से माना है ना, तो यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, यानी यहाँ पे 0 वैल्यू है। जिस तरीके से आप कोई भी यहाँ पे ओरिजिन मानते हैं तो ओरिजिन पे डिस्टेंस कितना होता है? 0 ही लेते हैं ना आप। इसके बाद ही तो वैल्यू बढ़ता है, या ऊपर बढ़े या इधर की वाई की ओर बढ़े, समझ रहे हैं ना। तो समझिए ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन से हम क्या लिए? एक्स डिस्टेंस पे लिए। तो यहाँ पे डी पे, ये डी पॉइंट पे एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? एक्स बराबर क्या है? यहाँ पे 0 है। अब देखिए ये जो रीजन्स आपका आ रहा है, ये x बराबर 1 मीटर पे है, लेकिन ये x बराबर 1 मीटर पे ये जो रीजन है ये डिफाइन नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे एक और लोड आ रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक और लोड आ रहा है। अगर लोड नहीं आ रहा होता तब जाके हम कह सकते थे कि 2 के 1 के बराबर भी लाइज करेगा। यहाँ पे 1 से छोटा होगा, x का वैल्यू 1 से छोटा होगा, और क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, यानी x लेस देन 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज टू अंडरस्टैंड कि रीजन्स कैसे डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे ही लोड आ रहा है, यहाँ पे शेयर फोर्स का वैल्यू और बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू चेंज हो जाएगा। इसलिए हमेशा 1 के बराबर नहीं होगा, 1 से छोटा में लाइज करेगा, या 0 के बराबर होगा, या 0 से बड़ा होगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। मीन्स आप ये रीजन डिफाइन कर लिया, और इसी के अंदर ये जो हमारा वैल्यू आया है, इसी रीजन के अंदर क्या होगा? ये वैल्यू लाइज करेगा। इजंट इट? आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया है, आप वीडियोस को पॉज कीजिए, फिर से देखिए, या मुझे आप कमेंट कीजिए, मैं आपको फिर से इसका सोल्यूशन आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से है, और व्हाट्सएप पे मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। लेकिन प्लीज़ आप समझिए इसको, कैसे रीजन को डिफाइन किया जाता है। तो आपको रीजन डिफिनेशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो रीजन डिफिनेशन आपको समझ में जब आ गया है, तो अब देखिए शेयर फोर्स एट डी आपको निकालना है। देखिए
एक चीज़ समझ आइए, सब समझ आइएगा। शेयर फोर्स है आपको डी निकालना है, तो जो शेयर फोर्स है आपको डी पे निकालना है, तो बताइए शेयर फोर्स है डी, यहाँ पे डी पे एक्स का वैल्यू कितना रखिएगा 0, तो एक्स का वैल्यू 0 रखिएगा, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू कुछ है कहाँ, यहाँ तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है 4, तो 4 ही होगा ना, तो शेयर फोर्स है डी कितना हो गया 4 किलो न्यूटन। ठीक है, उसी तरीके से बेंडिंग मोमेंट आपको जब निकालना है एक्स के मतलब एक्स बराबर 0 पे यानी डी पॉइंट पे, तो वहाँ पे एक्स का वैल्यू 0 है, तो -4 इंटू एक्स और एक्स का बराबर 0 रखिएगा, तो बेंडिंग मोमेंट एक्स कितना हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट एट डी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्स का वैल्यू वहाँ पे क्या है 0 है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए जैसे बेंडिंग मोमेंट हमने निकाला है, तो बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे जो आप निकाले हो, देखिए तो यहाँ पे ये जो आपका बेंडिंग मोमेंट है तो डी पे निकालना है, तो ऐसे मैग्नीट्यूड आपको कितना है 4 इंटू एक्स, एक्स सेक्शन में आया है, यही वैल्यू आपको लेना है और वहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या करना है लाइज कर देना है, तो आप डी पे निकालना है, तो डी पे एक्स का वैल्यू कितना है 0 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -4 इंटू 0 बराबर क्या 0, यानी डी पे आपका बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट इस कॉन्सेप्ट को समझना और आप इस कॉन्सेप्ट को समझते चलिए। ठीक है, बिल्कुल ये मास्टर रूल है एसएफडी और बीएमडी के लिए, अगर ये आपने समझ गया तो आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आता है, आप हर एक क्वेश्चन में अप्लाई कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखना मैं आपको एसएससी जेईई का क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, एसएससी जेईई के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा और देखना आप कितने आसानी से सॉल्व करोगे और देखना कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और अच्छे से समझें। ठीक है, जब आप वीडियोस देखते हो तो आप इस तरीके से पढ़ो कि आप पढ़ाई कर रहे हो, सो कर मत देखो, मतलब इसको एंजॉय करते हो मत देखो, अच्छे से देखो, समझ करके देखो और उसको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है नोट करो उसको, isn't it? तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, उसी तरीके से अब आगे की ओर हम लोग मूव करेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे, फिर हम लोग रीजन लेंगे। मैंने बताया था जैसा कि पहले हम लोगों ने सीडी रीजन को डिफाइन किया था, तो सीडी रीजन के बाद अब कौन सा रीजन आता है, ये वाला रीजन, बी से लेकर के सी का रीजन। ठीक है, देखिए कितना मैं अच्छे से आपको बता रहा हूँ, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर मेरा पढ़ाना जो है बेकार है फिर, है ना, आपको अच्छे से समझना है। और रीजन कहाँ से लेना है, एकदम डेफिनेशन प्योर पॉइंट याद रखिए, स्पेसिफिक पॉइंट। मान लीजिए ये ओरिजिन है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो मान लीजिए ओरिजिन है फ्रेंड, वहाँ से आपको लेना है और यहाँ से फिर एक्स डिस्टेंस पे लेना है सीबी रीजन में। यही पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप ये समझ जा रहे हैं तो आप बना लेंगे। तो सीबी रीजन जो आपका है, मैंने पहले सीडी में लिया, अब अगला रीजन कौन सा है सीबी है, तो सीबी में हम लोग लेंगे एक्स डिस्टेंस पे, जहाँ जहाँ पे लोड आ रहा है वो सारा रीजन्स होगा। ठीक है ना, रीजन डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सीबी रीजन है, सीबी रीजन में हमने एक्स डिस्टेंस पे लिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स डिस्टेंस पे लिया। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे, अब 3 यहाँ पे तो आपने ले लिया 4 किलो न्यूटन का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ एक्स है, लेकिन अब 3 का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ और आपको बताना है। 3 का डिस्टेंस इस x से कितना हो जाएगा, अब बताइए यहाँ से यहाँ डिस्टेंस x है 1 है, तो x में से अगर हम ये वाला पार्ट घटा दें, x माइनस x टोटल x है और ये वाला पार्ट घटा दे तो क्या निकल जाएगा, ये वाला डिस्टेंस निकल जाएगा, यानी x माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 3 से लेकर के 3 किलो न्यूटन का x का डिस्टेंस कितना है, x माइनस 1 है। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी ज़रूरत पड़ेगा इसका। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि 4 किलो न्यूटन का डिस्टेंस सेंटर से x है और 3 किलो न्यूटन का डिस्टेंस यहाँ पे c से कितना हो गया, x माइनस 1 हो गया। ठीक है, ये सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए शेयर फोर्स एट एक्स। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए मैं सारी चीज़ आपको यहीं बता देता हूँ, फिर नीचे कैलकुलेशन करके दिखा दूंगा, है ना, क्योंकि बार बार ऊपर नीचे करना पड़ता है इसमें स्लाइड, तो थोड़ा दिक्कत होता है ना। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखिए आपको अब निकालना है शेयर फोर्स एट सेक्शन एक्स पे निकालना है। तो देखिए अब यहाँ पे ये आपका है सेक्शन है, सेक्शन के राइट साइड में 2 फोर्सेज आ रहे हैं, 4 किलो न्यूटन और 3 किलो न्यूटन, और दोनों डाउनवर्ड हैं, है ना, तो मैग्नीट्यूड निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, और दोनों क्या होगा ऐड हो जाएगा, +4 + 3 बराबर 7। मतलब जो एक्स सेक्शन पे जो शेयर फोर्स आ रहा है कितना आ रहा है, 7 किलो न्यूटन आ रहा है। ठीक है, और जब हम बेंडिंग मोमेंट की बात करें, बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन एक्स तो कितना आएगा, आप लोग बताइए। पहला 4 किलो न्यूटन है और 3 किलो न्यूटन है, दोनों लोड के कारण मूवमेंट क्रिएट होगा। और कैसा मूवमेंट क्रिएट होगा, क्लॉकवाइज। पहले तो ये समझिए दोनों के कारण कैसा मूवमेंट क्रिएट होगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट होगा। और क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट होगा कितना होगा, देखिए पहले 4 किलो न्यूटन के कारण यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, एक्स है, तो कितना हो जाएगा पहले। और साइन कन्वेंशन क्या होगा, सेक्शन के राइट साइड में अगर क्लॉकवाइज है तो क्या लेते हैं साइन कन्वेंशन, निगेटिव लेते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा माइनस, पहले तो माइनस लिख लिए साइन कन्वेंशन, -4 और डिस्टेंस कितना है यहाँ पे x है, -4 × x, 4 किलो न्यूटन के कारण हो गया मूवमेंट हमारा माइनस। फिर 3 किलो न्यूटन है, इसके कारण भी क्लॉकवाइज मूवमेंट आएगा। तो सेक्शन के राइट साइड में अगर क्लॉकवाइज आता है तो निगेटिव लेते हैं। ठीक है, सॉरी मैंने पहले मिस्टेक हो गया था। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट आता है तो क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो निगेटिव ले लिए माइनस, और फिर एक मूवमेंट लोड 3 किलो न्यूटन के कारण आएगा, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है x का टर्म में, x - 1 है, तो -3 × x - 1
ठीक है। अब ये डिस्टेंस आपको पता चल गया, x-1 है एक्चुअली, ये बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन x हो गया। अब रीजन बताइए कहाँ से कहाँ तक लाइज करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन्स। अब देखिए ये जो आप CB रीजन ले रहे हैं तो CB रीजन्स का वैल्यू है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब देखना है आपको, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखना है, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है टोटल, 2 और 2 4, तो x लेस देन क्या होगा 4 होगा, 4 के बराबर नहीं होगा डिस्टेंस क्यों, क्योंकि 4 यहाँ पे 4 डिस्टेंस पे यहाँ पे 2 किलोमीटर का एक और लोड आ रहा है, जो कि यहाँ पे शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू क्या होगा, वैरी कर जाएगा। अगर कोई लोड नहीं रहता तो इक्वल टू भी हम लिख सकते थे, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है। यहाँ पे सिर्फ लेस देन 4 होगा, मतलब 4 के अंदर राइज करेगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 2 होगा। यहाँ दो जो वैल्यू है 2 का, ये 2 से बड़ा होगा, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 है ना, मतलब 1 के बराबर होगा या 1 के बड़ा होगा या 4 से छोटा होगा, ये रीजन हमारा लाइज करेगा। इसी बीच में हम इस वैल्यू को वैरी करा सकते हैं। और आपको अब जहाँ पे चाहिए, मान लीजिए C पे चाहिए, तो C क्या है, यहाँ पे C का वैल्यू 1 के बराबर है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप यहाँ पे आप, लेकिन यहाँ पे B पे नहीं निकाल सकते क्योंकि B x बराबर 4 है, जबकि ये इक्वेशन लेस देन 4 के लिए लाइज कर रहा है। तो सिर्फ यहाँ से हम C पे हम जो शेयर फोर्स है और बेंडिंग मोमेंट को निकाल सकते हैं। C पे क्या करेंगे, x बराबर 1 रख देंगे, और वहाँ पे एक शेयर फोर्स निकल जाएगा और बेंडिंग मोमेंट निकल जाएगा। तो आप C पे जब निकालोगे तो क्या होगा, 7 है तो 7 ही रह जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो जो लोड आ रहा है 4 + 3 7 किलो न्यूटन आ रहा है ना, तो 7 किलो न्यूटन ही रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x तो है नहीं, तो टर्म जो है 7 है तो 7 है, क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड है। और आप देखिए, अब आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा बेंडिंग मोमेंट, तो यहाँ पे सिर्फ x के बराबर 1 वैल्यू रख देना है और बेंडिंग मोमेंट आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे कितना है टोटल बेंडिंग मोमेंट एक्सिस कितना है, -4 × x और -3 × x-1। अब जब यहाँ पे x का वैल्यू 1 आप रखोगे तो कितना हो जाएगा, -4 × 1, -4 × 1 हो जाएगा। अब -3 × x-1, तो x का वैल्यू 1 है तो 1 - 1 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, सिर्फ कितना बच जाएगा -4। यूनिट हो जाएगा किलो न्यूटन मीटर मूवमेंट का। मैंने इसी चीज़ को नीचे में लिखा है, आप लोग एक बार देख लीजिए, ठीक है। यहाँ तक तो आई होप समझ में आ ही गया होगा आपको, मैंने सारी चीज़ों को बता दिया और नीचे में लिखा भी हुआ है। अब एक बार देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से हम लोग BA रीजन में भी सेक्शन लेंगे और वहाँ पे भी शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट करेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके लिए, है ना, आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल ये कॉन्सेप्ट। अब देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया है ना, तो यहाँ पे देखिए मैंने बताया कि 4 + 3 हो जाएगा, एक्सिस पे बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, -4 × x -3 × x-1, आपको बता दिया मैंने। तो -4 × 3 × x-1, x का वैल्यू जो रीजन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजन को डिफाइन करना, तभी आपको पता चलेगा कि x का वैल्यू कहाँ से कहाँ लाइज कर रहा है। अब देखिए शेयर फोर्स एट C पूछा जा रहा है, तो C क्या है, x बराबर 1 है, सेंटर मतलब जो हमारा फ्री एंड है, फ्री एंड x बराबर कितना पे है, 1 पे है, तो 1 पे है तो x का वैल्यू यहाँ पे शेयर फोर्स की तो कोई जरूरत नहीं, क्योंकि 7 है तो 7 ही रह जाएगा, ठीक है। सिर्फ हमको यहाँ पे x का वैल्यू बेंडिंग मोमेंट में जरूरत पड़ेगा, क्योंकि जो बेंडिंग मोमेंट है x का टर्म में है, तो यहाँ पे x का वैल्यू 1 रखेंगे और बेंडिंग मोमेंट निकाल लेंगे। आप लोग तो अब निकाल ही सकते हैं, मैंने जैसे पहले बताया। चलिए दिखा देते हैं कैसे निकालेंगे। -4 × x के बराबर 1 रख देंगे, -3 फिर 1 - 1 तो 0, तो -4 बच जाएगा टोटल। चलिए आपको दिखा देते हैं। मैं आपके लिए बहुत मेहनत करके वीडियोस बनाता हूँ, आपके लिए बहुत सारे मतलब कॉन्सेप्ट पढ़ता हूँ मैं, तब जाकर के मैं बताता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को देखिए और आप लोग समझिए, ठीक है। नहीं तो फिर मेरा पढ़ाना क्या मतलब है, अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो फिर कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। ऐसे मैं सिर्फ आपको PDF नोट्स भी प्रोवाइड कर सकता था, लेकिन मैं आपको वीडियोज़ बनाकर प्रोवाइड करता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए कहीं पर भी, है ना। तो देखिए बेंडिंग मोमेंट से निकालना, तो x बराबर 1 पे रखना है ना, क्योंकि हमारा सेंटर हमारा जो देखिएगा ऊपर में जाकर के पोस्ट करके वीडियो को, ऊपर x बराबर 1 है, हमारा जो ओरिजिन है यानी फ्रेंड है, फ्रेंड से x बराबर 1 पे C लाइज कर रहा है। तो हमारा जो ओरिजिनल इक्वेशन है बेंडिंग मोमेंट एट C पे -4 × x -3 × x-1, आप x का बराबर क्या रख दीजिए, हाँ 1 रख दीजिए, यहाँ पे x बराबर 1 रख दीजिए, सॉल्व कीजिएगा तो -4 किलो न्यूटन मीटर आ जाएगा। ये आपका हो गया बेंडिंग मोमेंट एट C, ठीक है। हम लोग जो है BC हम लोग पहले D पे निकाले फिर C पे निकाले, B पे नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि B का वैल्यू x बराबर 4 पे है, और जो ये इक्वेशन है वो लाइज कर रहा है x लेस देन 4 के लिए। यही मैं बताना चाह रहा हूँ, आप लोग गलती कभी भी नहीं कीजिएगा यहाँ पे 4 का वैल्यू रख करके, क्योंकि ये रीजन जो है x लेस देन 4 मीटर और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मीटर के लिए लाइज है ये इक्वेशन, और यहाँ पे 4 से छोटा होना चाहिए। 4 पे आप यहाँ पे वैल्यू, यानी कि जब आप D पे रखेंगे, सॉरी B पे रखेंगे तो B पे x बराबर 4 है, तो जबकि ये इक्वेशन उसके लिए लाइज नहीं कर रहा है, तो ये गलती भूल के भी आप लोग नहीं कीजिएगा कभी भी। जैसे मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट को आप यूटिलाइज कीजिएगा तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, फिर कहीं दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ रीजन को समझते चलिएगा, रीजन समझना इंपॉर्टेंट है, बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन बनाना इंपॉर्टेंट है। आप ये क्वेश्चन समझ जाएंगे तो आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट लोडिंग कंडीशन डिफरेंट होगा सारे क्वेश्चंस में, कहीं यूडीएल होगा कहीं पॉइंट लोड होगा, लेकिन क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा इसी तरीके से होगा। और मतलब आप
मैं बता रहा हूँ कि आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। मैं कराऊंगा सारे क्वेश्चन, आप टेंशन मत लो, लेकिन बस अभी यहाँ समझते चलो आप लोग यहाँ पे। अब देखिए अगेन लास्ट रीजन बच गया हमारा, डीसी रीजन था, डीसी रीजन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, सीबी रीजन को सॉल्व कर लिया हम लोगों ने, और बच गया हमारा एबी रीजन। तो एबी रीजन में हम लोगों ने एक सेक्शन ले लिया, जो कि सेंटर यहाँ से ओरिजिन से हमेशा याद रखिएगा, फ्रेंड से हम लोग मान लीजिए कि ओरिजिन है डी पॉइंट, फ्रेंड को ओरिजिन मान लीजिए, यहाँ से हम लोगों ने एक्स डिस्टेंस पे एक सेक्शन ले लिया, ठीक है। तो अब बताइए एक्स डिस्टेंस पे ले लिया, तो ये देखिए ये जो 3 किलो न्यूटन का लोड है आपके पास, जो 3 किलो न्यूटन है आपका, ये 3 किलो न्यूटन है, इसका इससे डिस्टेंस एक्स से डिस्टेंस और 2 किलो न्यूटन का भी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, दोनों को डिफाइन करना पड़ेगा। तो बताइए यहाँ से यहाँ एक्स 1 मीटर है और टोटल डिस्टेंस यहाँ पे एक्स है, तो ये वाला डिस्टेंस आप नहीं निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा x माइनस 1, ठीक है। उस तरीके से यहाँ पे देखिए 2 किलो न्यूटन है, तो टोटल डिस्टेंस x, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ पे देखिए कितना है, 3 मीटर है ना, 1 मीटर ये और 2 मीटर ये, तो यहाँ से यहाँ टोटल 3 मीटर है ना, तो 3, तो टोटल x माइनस क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस 3 हो जाएगा। अब हम तीनों लोड्स का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस को डिफाइन कर चुके हैं, इसलिए कि हमें ये बेंडिंग मोमेंट निकालने के समय में यूजफुल होगा। अब बताइए शेयर फोर्स आपको निकालना है एक्स एक्सिस पे रीजन बी ए में, तो आपको शेयर फोर्स एट एक्स निकालना है, तो कितना हो जाएगा, ये तीनों डाउनवर्ड फोर्सेज है, और देखो सेक्शन के राइट साइड में तो सारा पॉजिटिव हो जाएगा, सारा को ऐड कर देंगे, 4 + 3 7 + 2 9, यानी कि 9 किलो न्यूटन जो है हमारा शेयर फोर्स आ रहा है बी ए रीजन्स में, ठीक है। अब आप बोला जाएगा कि आप निकालिए बी पे और ए पे। देखिए ये रीजन आपको समझना इंपॉर्टेंट रहेगा, पहला बेंडिंग मोमेंट देख लीजिए, शेयर फोर्स हो गया और बेंडिंग मोमेंट, आप उसी तरीके से ये मोमेंट कैसा मोमेंट रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज मोमेंट होगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा रोटेट करेगा, ये भी ऐसा रोटेट करेगा, ये भी ऐसे रोटेट करेगा। अब सेक्शन के राइट साइड में क्लॉकवाइज मोमेंट है, तो साइन कन्वेंशन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब आपको मोमेंट निकालना है एक्स पे, तो कैसे निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट एक्स एक्सिस, बेंडिंग मोमेंट आपको निकालना है एट एक्स एक्स, तो कैसे निकालेंगे, पहला 4 किलो न्यूटन इसके कारण मूवमेंट आएगा, तो कितना हो जाएगा 4 × x, यहाँ पे माइनस लग जाएगा साइन, ठीक है। फिर माइनस होगा क्योंकि यहाँ पे 3 किलो न्यूटन के कारण भी क्लॉकवाइज मूवमेंट आ रहा है सेक्शन के राइट साइड में, तो -3। अब डिस्टेंस देखिएगा यहाँ से यहाँ x के टर्म में कितना है, x माइनस 1, 3 × x माइनस 1। फिर अब 2 किलो न्यूटन का डिस्टेंस x के टर्म में माइनस, फिर माइनस होगा क्योंकि क्लॉकवाइज मूवमेंट है सेक्शन के राइट साइड में, 2 × x माइनस 3। ये आपका स्टैंडर्ड बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन हो गया। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे आपको ये समझना है रीजन कहाँ से कहाँ लाइज करेगा। देखिए अब देखिए यहाँ पे ए पे कोई लोड आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे डी से लेकर ए का डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर, तो एक्स रुकिए एक्स लेस देन इक्वल टू 4 मीटर। देखिए ये इंपॉर्टेंट समझना है, यहाँ पे एक्स लेस देन खाली नहीं होगा, एक्स लेस देन इक्वल टू होगा क्योंकि ए पे कोई लोड नहीं आ रहा है। अब ये 4 के बराबर भी यहाँ पे लाइज कर सकता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स लेस देन और इक्वल टू 4 मीटर, ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना मीटर, यहाँ से यहाँ कितना 1 मीटर डिस्टेंस है, तो कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर। मतलब जो है एक्स का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4 के लिए और ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए ये वैल्यू क्या हो रहा है, लाइज कर रहा है, क्योंकि ये यहाँ से कितना डिस्टेंस पे 3 मीटर पे, क्योंकि यहाँ से 1 है और ये 2 है, तो टोटल 3 ही हो गया ना। तो मतलब ये जो रीजन है एक्स लेस देन और इक्वल टू 4 के लिए और ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए, ये रीजन क्या है, डिफाइन है। अब इस वैल्यू में जहाँ पे आपको निकालना है, मान लीजिए बी पे निकालना है, तो बी पे डिस्टेंस हम देख लेंगे। कहाँ से डिस्टेंस देखेंगे बी पे जो डिस्टेंस आप देखोगे वो कहाँ से डिस्टेंस देखोगे, बी पे जो डिस्टेंस देखोगे आप यहाँ से देखोगे, यहाँ से यहाँ तक का कितना है, यहाँ पे 3 है, तो x बराबर 3 रखेंगे बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन में, तो आपका निकल जाएगा बी पे। और मान लीजिए आपको निकालना है ए पे, तो ए पे निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा, यहाँ पे x बराबर 4 रख दीजिए वैल्यू बेंडिंग मोमेंट पे, जहाँ जहाँ x वहाँ 4 रख दीजिए, तो वहाँ पे आपको ए पे निकल जाएगा। और शेयर फोर्स तो कांस्टेंट है, उसमें कहीं x नहीं हो, तो 9 किलो न्यूटन मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो वहाँ पे बी पे भी और ए पे भी दोनों जगह पे कितना हो जाएगा, शेयर फोर्स 9 किलो न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अगर आप सिर्फ पीडीएफ देख रहे होंगे और पीडीएफ से सिर्फ सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, तो आपको नहीं समझ में आने वाला है। ठीक है, जब तक आप वीडियोस नहीं देखोगे, जब तक कॉन्सेप्ट को समझोगे नहीं, तो आप नहीं बना सकते हो। ये मत सोचना कि सिर्फ पीडीएफ देख ले रहे हैं और मुझे सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी, कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। आप भले ही रट के बना सकते हो, कहीं बुक से देख करके 3 बार 4 बार बना कर रट लोगे, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको वीडियोस देखना और कॉन्सेप्ट को समझना इंपॉर्टेंट होगा, है ना। कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। मैं ये क्वेश्चन इसलिए इतना डिटेल में बता रहा हूँ ताकि मैं इस क्वेश्चन के बाद में आपको इतना डिटेल्स मैं नहीं बताने वाला हूँ। डायरेक्ट सेक्शन लूँगा, डायरेक्ट सेक्शन पे शेयर फोर्स निकालूंगा और बेंडिंग मोमेंट निकालूंगा, और वहाँ पे रीजन्स को डिफाइन करके सारे वैल्यूज को डिपिक्ट करके मैं डायरेक्ट शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर दूंगा। मैं इतना टाइम नहीं लूँगा, मैं सिर्फ पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं इतना, थोड़ा मल्टीपल लोड का पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इतना। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखना, ये मत सोचना कि मैं बार बार इतना कॉन्सेप्ट बताते जा रहा हूँ आपको। ठीक है, आप अगर नहीं समझोगे तो मैं बार बार आपको नहीं बताने वाला हूँ। अब देखिए ये आपको निकल गया, जिससे मैंने पहले बताया था उस तरीके से यहाँ पे भी मैंने लिख दिया है।
तो देखिए यहाँ पे शेयर फोर्स निकाला 4 + 3 + 2 9 किलो न्यूटन, बेंडिंग मोमेंट एट x (-4 × x -3 × x -1 -2 × x -3). यहाँ पे यही करना है कि सारे लोड का x एक्सिस से डिस्टेंस पे वहाँ निकाल देना है, उस पर बेंडिंग मोमेंट ले लेना है और साइन कन्वेंशन को दिखाना है, जरूरी है। ठीक है, ये वैल्यू हमारा आ गया। और x < 4 और > 3 ये कैसे रीजन है, इसको भी मैंने अच्छे से भी ऊपर में समझाया है आपको। ठीक है, कहीं भी दिक्कत है आप वीडियोज़ को पॉज कीजिए और ऊपर में देखिए। ठीक है और आप लोग क्वेश्चंस जो है इसको अच्छे से समझिए। ठीक है, कहीं नहीं समझ में आता है तो उसको देखते रहिए बार बार, नहीं समझ में आता है तो। अब देखिए यहाँ पे जो आपको निकालना है शेयर फोर्स साइड बी पे निकालना है, तो बी पे जब आप निकालिएगा शेयर फोर्स साइड आप बी पे आपको डिटरमाइन करना है, तो बी पे आपको निकालने के लिए मैंने बताया था कि बी पे आपका जो वैल्यू है वो कितना भी एक्स का वैल्यू रखेंगे उतना ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्स का वैल्यू तो है नहीं। और ए पे भी निकालेंगे तो उतना ही आएगा। और रीजन एकदम बिल्कुल डिफाइन है, एक्स के < 3 है और सॉरी < 4 है, > 3 है, तो बी पे भी लाइज करेगा और सी पे भी लाइज करेगा। यानी x = 3 पे भी यही वैल्यू आएगा आपका और x = 4 पे भी वैल्यू यही आएगा। मतलब बी पे बोला जाए मतलब x = 3 पे बोला जा रहा है। और डिस्टेंस कहाँ से देखना है, हमेशा ओरिजिन से देखना है, मतलब हमेशा फ्रंट से देखना है। और ए पे बोला जा रहा है, इसका मतलब क्या है, x = कितना है वहाँ पे 4 है, तो दोनों जगह पे 99 किलो न्यूटन आएगा शेयर फोर्स। अब देखिए बेंडिंग मोमेंट में है थोड़ा प्रॉब्लम, बेंडिंग मोमेंट x = 3 पे निकालना है। तो जो स्टैंडर्ड बेंडिंग मोमेंट का हमारा आया था x सेक्शन पे, वो इक्वेशन को यहाँ पे हम यूटिलाइज करेंगे। तो कितना इक्वेशन आया था, ये इक्वेशन आया था -4 × x -3 × x -1 -2 × x -3। अब आपको निकालना है किस पे, b पे। तो b बराबर कितना है, b हमारा फ्रंट से कितना डिस्टेंस पे है, x = 3 पे है, तो x का वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग, 3 रख देंगे सारे जगह पे। ठीक है, आप ये रखोगे और सॉल्व करोगे तो आपका ये इक्वेशन आ जाएगा -18 किलो न्यूटन मीटर सॉल्व करके। यानी बेंडिंग मोमेंट एट बी कितना आ गया, -18 किलो न्यूटन मीटर। जैसे साइन कन्वेंशन है एज इट इज, उसमें हम लोग x का वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, क्लियर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग सेक्शन लेते हैं और कैसे बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं और कैसे वहाँ पे शेयर फोर्स निकालते हैं और किस तरीके से हम रीजन्स को डिफाइन करते हैं। इतना कॉन्सेप्ट तो आपको आ गया हो, क्योंकि यहाँ पे 3 रीजन्स था और तीनों रीजन में सेम कॉन्सेप्ट यूटिलाइज करना है, बट वहाँ पे सब चीज़ों का वैल्यू वेरी करेगा। लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही है कि वहाँ पे रीजन लेना है, वहाँ पे रीजन डिफाइन करना है, वहाँ पे शेयर फोर्स लेना है, वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट लेना है। ठीक है, और डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है कि आप हर एक लोड का एक्स एक्सिस जो है आपका, वहाँ से डिस्टेंस को डिफाइन करना है इन द टर्म ऑफ x। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आपको ए पे बोला जा रहा है, तो बहुत ही आसान है। ए पे बोला जा रहा है, तो अब आप ए पे निकालना चाहते हैं तो ए पे देखिए आसानी से निकाल सकते हैं। ए पे क्या करिएगा, ए पे x = 4 रख दीजिएगा। आपका जो बीम था, बीम से जो फ्रंट से एक का वैल्यू कितना था, 4 मीटर था, तो 4 पे रख दीजिए। जो हमारा बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन था वहाँ पे यही था ना बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन हमारा, 4x -3 × x -1 -2 × x -3। यहाँ पे x का वैल्यू क्या रख दिए, 4 रख दीजिए। तो x = 4 रखिए, जहाँ पे x है वहाँ का वैल्यू 4 रख दीजिए और सॉल्व करिए तो समझ में आएगा आपको कि -27 किलो न्यूटन मीटर वहाँ पे वैल्यू आ रहा है, बेंडिंग मोमेंट एट ए का वैल्यू। ठीक है, अब सारे वैल्यूज़ को हम लोग निकाल लिए, हर एक रीजन को निकाल लिए और हर एक पॉइंट पे ऐसे शेयर फोर्स को और बेंडिंग मोमेंट को निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, इसका ड्राइंग बनाएंगे, शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स। लेकिन उससे पहले आपको इतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तब जा करके आप शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। और ये वर्सेटाइल मेथड है। ठीक है, कहीं भी एप्लीकेबल है ये। कहीं भी आपको दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, अब जितना भी सारा हम लोग निकाले हैं उसको एक जगह पे समराइज़ कर लेंगे, जो भी हम निकाले हैं, ताकि हमको एसएफडी और बीएमडी का ड्राइंग करते समय हमें कहीं भी दिक्कत नहीं आए। तो हम लोगों ने यहाँ पे समराइज़ कर लिया जितने भी पॉइंट थे, सारे पॉइंट पे ऊपर में जो मैंने कैलकुलेट किया है वही वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे शेयर फोर्स का वैल्यू लिखा हुआ है और यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू को लिखा हुआ है। तो देखिए डी पे आया है 4 किलो न्यूटन, सी पे 7 किलो न्यूटन, बी पे 9 किलो न्यूटन, ये सब आया है ऊपर में, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। ए पे 9 किलो न्यूटन, इतना शेयर फोर्स का वैल्यू आया है हर एक पॉइंट पे। अब देखिए यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू, देखिए बहुत सारी चीज़ें बुक में नहीं लिखी हुई है, मैं आपको आपके कन्वीनियंट के लिए मैं आपको बहुत चीज़ों को आसान बना देता हूँ ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना आए। ठीक है, तो आप अच्छे से समझिए। बेंडिंग मोमेंट एट डी = 0 आया है, बेंडिंग मोमेंट सी -4 किलो न्यूटन मीटर, बेंडिंग मोमेंट एट बी -18 किलो न्यूटन मीटर, बेंडिंग मोमेंट एट ए -27 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो इतना चीज़ें हमको पता हो गई। अब हम आसानी से एसएफडी और बीएमडी को ड्रॉ कर सकते हैं।
उसी को ड्रॉ करने के लिए ही इतना ज़्यादा हम लोग उस समय से ये कर रहे थे, ताकि हर एक पॉइंट पे हमारा वैल्यू पता चल जाए और हम आसानी से शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के वैल्यू को क्या करें, वहाँ पे शो कर सके। ठीक है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लिया है, ताकि डियर स्टूडेंट्स आपको कहीं दिक्कत ना हो और आप चीज़ों को अच्छे से समझ जाएं, एक क्वेश्चन को समझ जाएं। मैं आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ, हमेशा मैं आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ कि आप एक क्वेश्चन को समझो और आप 5 क्वेश्चन को सॉल्व करो, ना कि आप एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रट लो, फिर अगला क्वेश्चन फिर मुझसे पूछो कि सर ये कैसे होगा। आप एक क्वेश्चन को समझो और उससे 4-5 क्वेश्चन जो उससे एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट है उस पर बनाओ, तब मैं समझूंगा कि आपने मेरे कॉन्सेप्ट को समझा है, आपने मेरे कॉन्सेप्ट को समझ के बनाया है। अदरवाइज़ मुझे हर क्वेश्चन बनाना पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि आप नहीं पढ़ रहे हो फिर। ठीक है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको कॉन्सेप्ट को समझने पे ध्यान दें। देखिए मैंने शेयर फोर्स डायग्राम को पहले ड्रॉ किया है, तो फिर मैं बेंडिंग मोमेंट बताऊंगा। देखिए ये जो है एसएफडी और बीएमडी का ये पिक्चोरियल व्यू है, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर जैसे एज इट इज़ है, बीम को मैंने ड्रॉ कर दिया, बीम को ड्रॉ कर दिया। बीम को ड्रॉ करने के बाद जो भी लोड्स है या जो भी पॉइंट्स है उसमें एक लाइट लाइन से लाइन ड्रॉ कर देना है ऐसे। ठीक है, लाइट लाइन से लाइन ड्रॉ किया गया, देख रहे हैं आप। 3 किलोमीटर से भी यहाँ लाइट लाइन ड्रॉ किया गया नीचे की ओर में, 2 किलोमीटर से भी लाइट लाइन ड्रॉ किया गया। जितने भी पॉइंट्स हैं सारे से लाइट लाइन ड्रॉ करना है। ए से भी लाइट लाइन ड्रॉ किया गया है, ड्रॉ कर दिया गया। ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा। उसके बाद हम लोगों ने एक बेस लाइन लिया, ये जो बेस लाइन है ये बेस लाइन लिया हम लोगों ने। ठीक है, बेस लाइन क्यों लिया? बेस लाइन इसलिए लिया ताकि हमें यहाँ पे साइन कन्वेंशन होता है, तो बेस लाइन के ऊपर वाले पार्ट को हम लोग पॉजिटिव ले लेते हैं और बेस लाइन के नीचे वाले पार्ट को हम लोग निगेटिव ले लेते हैं। ये मैंने रूल्स में भी बताया था। तो ऊपर वाले पार्ट को पॉजिटिव ले लिए हम लोग। ठीक है, अब देखिए जहाँ जहाँ पे जो फोर्स आ रहा था, देखिए वहाँ पे जो पॉइंट था डी पे 4 किलोन्यूटन आ रहा था, उसके बाद यहाँ पे सी पे 7 किलोन्यूटन आ रहा था, बी पे 9 किलोन्यूटन आ रहा था और डी पे भी ए पे भी 9 किलोन्यूटन आ रहा था। ये सारे फोर्स को हमने यहाँ पे डायग्राम के थ्रू दिखाया। कैसे दिखाते हैं? यहाँ से मान लीजिए 4 किलोन्यूटन है, 4 किलोन्यूटन किया। हम बताए थे कि जब भी वर्टिकल लोड आता है तो वर्टिकली राइज या अप करता है, तो पॉजिटिव है तो अप करेगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे कोई लोड नहीं है, सीडी रीजन में कांस्टेंट जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे 3 किलोमीटर लोड आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, 7 आ रहा था तो यहीं पे 4, यहाँ तक तो 4 है और फिर क्या करेंगे, यहाँ से 3 ऊपर बढ़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7। देखिए मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ध्यान दीजिएगा। 3 किलोमीटर यहाँ पे लाइज कर रहा है, ये नहीं कि आप बेस से जाइएगा, यहीं से 3 किलोमीटर ऊपर चल जाना है, तब क्या होगा 4 + 3 7। फिर यहाँ से कोई लोड नहीं आ रहा है सीबी में, फिर कांस्टेंट जाएंगे। उसके बाद में यहाँ से जब कांस्टेंट चले गए तो देखिए बी पे एक और लोड है 2 किलोमीटर, तो फिर यहीं से 2 किलोमीटर ऊपर की ओर बढ़ जाना है, यहीं से ऊपर की ओर 2 बढ़ गए तो 7 + 2 9। फिर यहाँ पे बी ए में कोई लोड नहीं आ रहा, फिर बी ए में कांस्टेंट गए। फिर यहाँ पे देखिए ए पे 9 किलोमीटर है, फिर यहाँ से क्या होगा, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे इसको मिला देंगे ए से यहाँ पे। ठीक है, नीचे की ओर मिला देंगे और वहाँ पे क्या करेंगे, जो जहाँ पे मिला है उस लाइन को ऊपर में हैच कर देंगे, जैसे मैंने हैचिंग किया है। ठीक है, उसको हैच कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू को दिखा देंगे क्योंकि हमारा पॉजिटिव वैल्यू है सारा, और यहाँ पे एसएफडी लिख देंगे ऊपर में। ठीक है, ये शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करने का ये तरीका है। इस तरीके से आप एसएफडी को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वेरिएशन कैसे हो रहा है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि 4 किलोमीटर क्या है, यहाँ पे वर्टिकल लोड है इसलिए वर्टिकली राइज किया है। यहाँ पे कोई लोड नहीं है सीडी रीजन के बीच में, इसलिए यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, ये तो पहले ही आपको पता है ना वेरिएशन कैसे होता है। वेरिएशन लेकिन जरूरी है, किस तरीके से वेरी कर रहा है ये आपको समझना जरूरी है। जहाँ पे कोई लोड नहीं आ रहा है वहाँ पे कांस्टेंट होगा, जहाँ पे लोड आ रहा है वर्टिकल वहाँ पे राइज और अप करेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव है इसलिए राइज कर रहा है। ठीक है, चलिए अब बस वीडियोस अब लेक्चर्स जो है एंड होने वाला है, बस लास्ट पार्ट जो है बेंडिंग मोमेंट का हम लोग देख लेते हैं कि बेंडिंग मोमेंट कैसे निकाले हैं हम लोग, है ना। ये देख लेंगे तो आपको इस क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन हो जाएगा और आपकी इसको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन पहले वीडियोस देखिए तब पीडीएफ को प्रोवाइड कर दूंगा मैं। ठीक है, देखिए बेंडिंग मोमेंट्स, तो बेंडिंग मोमेंट का जो वैल्यू है मैंने अभी बताया था, बेंडिंग मोमेंट का जो वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है। देखिए यहाँ पे डी पे क्या आ रहा था, 0 आ रहा था ऊपर, आप देखना मैंने सब कुछ समराइज कर दिया इसलिए कि ताकि आपको दिक्कत ना हो। और यहाँ पे देखना डी के बाद सी पे 4 किलोमीटर मीटर आ रहा था तो मैंने 4 किलोमीटर मीटर लिया। अब देखिए स्ट्रेट यहाँ पे वर्टिकल लोड था तो यहाँ पे कैसा बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन होगा, स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, यही इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन खींचा गया यहाँ पे। फिर देखिए यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे ये डी पॉइंट है, उसके बाद सी था, यहाँ पे बी है, तो बी पे देखना आपका आया है 18 किलोमीटर मीटर, तो आप यहाँ से 4 किलोमीटर मीटर से ही इसको मिला देंगे स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड लाइन से। यहाँ पे 18 किलोमीटर को मिला दिए, क्योंकि यहाँ पे कौन सा लोड है, पॉइंट लोड है, इसलिए यहाँ पे इंक्लाइंड लाइन ही होगा बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, और उसके बाद फिर आया है 27 किलोमीटर मीटर ए पे, तो ए पे 27 किलोमीटर मीटर हो गया। फिर से यहाँ पे स्ट्रेट इंक्लाइंड लाइन से हम मिला दें क्योंकि यहाँ पे भी वर्टिकल लोड है। और क्या करेंगे फिर इसको टोटल को मिला देंगे, यहाँ पे टोटल उसको ऐसे टोटल मिला देंगे।
उसके बाद हम लाइन को क्या करेंगे, अंदर में हैच कर देंगे, लाइन को हैचिंग कर देंगे अंदर वाले पार्ट को, जैसे मैंने हैच किया आप देख लेना एक बार, हैचिंग कर देंगे और यहाँ पे निगेटिव साइन दे देंगे और यहाँ पे BMD को लिख देंगे और सारे मैग्नीट्यूड को यहाँ पे लिख देंगे जहाँ जहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है। आई होप आपको इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिला होगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट से आप अवगत हुए होंगे कि किस टाइप के कॉन्सेप्ट कैसे यूटिलाइज किए जाते हैं। सो दिस इज़ एंड पार्ट ऑफ माई वीडियो। So thank you everyone for watching my video lectures and listening. So stay tuned. God bless you all. Thank you very much.